Hello students, welcome back to your favorite channel Learning Point. Now today we are going to learn a poem from 10th standard lower English, that is from semi English, a teenager's prayer. And first we will read the poem, then we will understand the poem in English as well as in Hindi. Come on, let's read the poem first. तो सबसे पहले हम लोग पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे. So let's start the poem. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. तो ये थी पूरी पोएम जो हमने एक बार रीड कर ली है. अब इसके बाद हम लोग उसके मीनिंग समझेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. तो फर्स्ट इस पोएम में क्या बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट. पोएट मतलब होता है जिसने ये पोएम लिखी है, उसको बोलते हैं कवि, और जो स्टोरी लिखता है उसे बोलते हैं लेखक. So this is a difference between a poet and a writer. So basically this is a poem. It is written by a poet, J. Morse. In this poem, A Teenager's Prayer, the poet, he is taking the place of a teenager to talk about their thoughts. मतलब सबसे पहले तो जो बच्चे 12 से 18 साल के बीच में होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहते हैं. तो इसमें उन्हीं बच्चों को पोएट ने खुद के जैसा समझा है और उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेयर भी की है. और जो जे मॉर्स है, जो कवि है, उन्होंने अपने आप को ही बच्चा समझा हुआ है इस पोएम में, और फिर वो गॉड से प्रे कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग स्टैंजा रीड करेंगे, मींस फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे 4 लाइंस, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन या मीनिंग देखेंगे. सो ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Now here in the first stanza the poet says that for them means the teenagers. Each day is a new beginning and they have to firmly choose new decisions irrespective of whether they are easy or difficult. इसका मतलब ये होता है कि जो कवि है यानी जे मॉर्स, वो बोलते हैं कि हर नया दिन एक नई उम्मीद लाती है और एक नई शुरुआत भी होती है, और उन्हें हर नए दिन को एक नए फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो. अभी हम सेकेंड पैराग्राफ रीड करेंगे और फिर उसका मीनिंग देखेंगे. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द darkened road that leads to great distress. Now in the second stanza the poet talks about two paths and a teenager's dilemma to choose one among them. Now one path can lead them to great success while the other path leads to distress. अब इसमें कवि कहते हैं कि बच्चों के सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाए और दूसरा जो उन्हें अंधेरे की तरफ ले जाए, और बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि वो कौन से रास्ते पे जाए. अब हम थर्ड पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर उसका मीनिंग देखेंगे. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Now in the third stanza is all about a teenager's prayer to God to make him or her see things without any partiality, to make them choose the correct path, and also to give them strength to bring out the best in him or her. Now इन हिंदी वी विल सी द मीनिंग. कवि कहते हैं कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और उन पे चलना भी सिखाएं. जो सही है हम उसी का साथ दें और जो गलत है उसका साथ नहीं दें, बल्कि
हम लोग किसी में भी फ़र्क नहीं करें। अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In the fourth stanza, he prays to God to make them stay away from the temptations which can make him weak. He or she wants to be strong physically and mentally, to be away from the things that can tempt them. अभी इस पैराग्राफ में जो कवि है जे मॉर्स, वो बोल रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि बच्चों को यानी हमें, जो टीनेजर्स हैं उन्हें वो हर वो चीज़ से दूर रखे जिससे वो कमज़ोर होते हैं दिमागी तौर से और शरीर से। बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग दिमागी और शरीर से दोनों से भी, दिमाग से और शरीर से दोनों से सेहतमंद रहें, ताकि हम नए दिन नई चीज़ें कर सकें और आगे बढ़ सकें। अभी हम लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। When my teenage years are over, I know that I will see that life has lived its very best with you walking next to me. In the last stanza, the teenager who is looking into the future says that he or she will be happy due to success they achieved in their life, which was only due to God, who showed them the right path by listening to all their prayers. इसमें कवि कहते हैं कि हम सब हमारी कामयाबी से खुश होंगे और सिर्फ गॉड की वजह से ये हमें मिली है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारा सही में साथ दिया है और सही रास्ता दिखाया है, और हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है और आगे भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बिकॉज़ मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी में भी समझाया है, और आगे मैं हर चैप्टर और पोएम के लिए कोशिश करूँगी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँ, जैसे मैं अपनी क्लास में समझाती हूँ। एंड उसके बाद अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, इवन सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो लर्न, ताकि आपके फ्रेंड्स भी लर्न करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ज़रूर याद रखें।